The valley's history turned on the night of the 19th of January 1990. There was curfew in Srinagar and reports of an imminent anti-Hindu attack. Local mosques began asking the Pandits to leave their homes. In that one single night, thousands and thousands packed and left in what would be the beginning of a mass exodus. In this episode of The Dinner Table, I'm meeting Mr. Sanjay Kaur, a Kashmiri Hindu who fled his ancestral home with his parents and grandparents in 1990 after the community was targeted by some extremist groups in Kashmir. Today I'm meeting him to know what his family's journey has been since the exodus. Hello, good evening. Good evening. Please come. Come. Hi. How are you? Very fine. अरे वो बाउल में मैंने वो लाए थे बिस्किट, वो कहाँ है? अरे वो अच्छे बिस्किट है कोको में। I got to know कि आपने खाना बनाया 14 दिन। बकवास खाना था, कुछ भी नहीं था वो। 14 दिन कब बनाया? हम बर्तन किए, झाड़ू में 3 बीमारी महीने से धो रहा हूँ। Yesterday was the first day, रात को मैंने बर्तन नहीं धोए हैं। ये कोई हवा नहीं कर दिया मिस्टर काव ने। हाँ, what do you expect? A COVID patient will do each and everything, and nobody is adjustable in our house. Nobody will have bread. 4 people in 4 different breakfasts, lunch different, lunch will be different, dinner will be different. Evening में 24 घंटा उसको भूख ही भूख लगी रहती है। तो मतलब this is not life, मतलब I'm just praying कि सब normal हो जाए, मैं भी अपनी जिंदगी जी लूँ, जो भूल गए हैं इतने टाइम से। Life has changed. It's not the same as it used to be. How was your life like in your childhood? Childhood में तो it's same, हर एक का होता है। Kuch No memories, different. like the fondest memories that you had. Yes, everybody's school memories are very good in the different format. College is different. When you pick up cigarettes, you watch movies, bunking classes. That was a part of it. Then I got admission into post-graduation statistics. I could study only for 1 year because of the migration and other things. During that period, I picked up this habit of writing for newspapers. I used to contribute for a paper called Greater Kashmir. So I used to write for papers just to impress upon girls. वो पढ़ेंगी तो थोड़ा impress हो जाएंगी कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है. That is how I joined journalism. I mean, how was everything in Valley? Because we don't know. See, Valley is a very cool place. जैसे चूहा कोई नदी में तैर रहा है तो पूरा वो जो ब्रिज होता था उसमें लोग 500 लोग देख रहे होते थे कि चूहा कैसे तैर रहा है. सो रिलैक्स्ड लाइफ थी. दैट वाज द टेम्पो ऑफ द वैली. दैट वाज द फील सेंस जो होती थी उस समय. वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल या तो जो मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादातर है वो बिजनेस में है. कश्मीरी हिंदूज जो हैं वो आप देखोगे सब्जी नहीं बेचता है. उसका अगर बिजनेस होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस होगा. स्टेशनरी शॉप होगी, मेडिकल शॉप होगा. तो कश्मीरी हिंदूज में मोस्ट ऑफ द पीपल विल सी ये या तो इंजीनियर है या डॉक्टर है. 90%. मोस्ट ऑफ द हिंदूज में देखोगे कि कोई ग्रेजुएशन से कम दिखेगा नहीं आप. ग्रेजुएशन विल बी द मिनिमम क्राइटेरिया. वो था ही था. एंड दैट इज़ हाउ इट दिस कम्युनिटी सर्वाइव बिकॉज ऑफ एजुकेशन. अगर एजुकेशन नहीं होती तो ये कम्युनिटी सर्वाइव नहीं करती. Your friends, do you remember any of your I remember all of them. How come you know? I remember each and every friend of mine. I've got some Muslim friends. One is my childhood friend. He's in Dubai. So his name is Sajjad Shawl. Another friend I have, his name is Imtiaz. He's working with J&K Bank. I have another friend who used to do journalism with me in Greater Kashmir. His name is again Sajjad. And how was your house there? I mean, who all lived there at that time? In Srinagar we had downtown ही बोलेंगे हम लोग. Part of downtown. It was called, the area was called Shala Kadar. Hindu dominated pockets थे ये. वहाँ पे we had a 3-4 story house. It was an old house. But after migration we sold it in 91, 92 for 50,000 rupees. And how much was actual
cost of it? कितना होगा उस समय में 4-5 लाख. They had a bungalow which may be worth now 5 crore rupees. They sold their bungalow for 5 lakh rupees in the posh colony. Just land का भी cost उसे कम होगा because nobody was there ना. Already when migration started. Sit here ना. Come. अरे मैं तो बच्ची थी, मुझे क्या पता, ये तो बड़े थे. बचपन में कहाँ से पैसे का हिसाब करेंगे. So Kashmir was a very cool place. चले? Like I really want to know कोई ऐसी memories जो आपकी उस टाइम की है जो आपको बहुत पसंद है. हम लोग यार मूवीज देखने जाते थे. जब हीरो मूवी आई थी तो हम लोग का मैं फर्स्ट शो देखने के चक्कर में हम लोग जाते थे. अब पैसे होते नहीं थे तो वहाँ लाइन एक ही थिएटर था जो कि बहुत ही अच्छा थिएटर, उसको ब्रॉडवे थिएटर बोलते थे. वो बड़ा डिसेंट सा थिएटर था जहाँ पे अच्छे लोग, दूर था लेकिन बट इट वाज इन द कैंटोनमेंट एरिया. सो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, लाइन में पहले खड़ा होकर जैसे टिकट ले ली, उसको हम बेच देते थे ब्लैक में, और वो जो पैसे होते थे उससे फिर दूसरी टिकट खरीदते थे. How was the environment उस टाइम पर वहाँ पे, एटमॉस्फेयर? सी मैं आपको एक वहाँ एक चीज़ जो फीलिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग थी, आज हम माने या ना माने, वहाँ अगर क्रिकेट मैच होता था तो उस दिन लगता था कि इंडिया पाकिस्तान हो रहा है. मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी विल चेयर फॉर पाकिस्तान, वी विल चेयर फॉर इंडिया. हम गावस्कर, वो इमरान खान. सो दैट वाज द, बट अदरवाइज जो एल्डरली पॉपुलेशन थी, जो वन ऑन वन कनेक्ट जो था, उसमें जो ब्यूटी थी वो बहुत ही कॉर्डियल था. वहाँ पे एक बार जब जीएम शाह थे, वो जब चीफ मिनिस्टर थे मिड 80s में, वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ दंगा वंगा हो गया तो कर्फ्यू लगा था 2-3 महीने तक. मतलब जब कर्फ्यू लगा उस समय जो है जो मेरी ग्रैंड मदर, क्योंकि शी वॉज अ एल्डरली लेडी, तो मुस्लिम्स यूज टू ब्रिंग अस वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स. सो दैट टाइप ऑफ थिंग वॉज देयर. ये नहीं था कि जो एल्डरली में जो कनेक्ट था, दैट वाज ब्यूटी. मतलब वो उसमें कोई आप मुकाबला नहीं कर सकते. ये पूरी फैमिली, मतलब कौन कौन थे आपके फैमिली में? सब उस समय ग्रैंड मदर थी, मदर थे, मेरी सिस्टर वाज बोर्न लेटर, मतलब वो तब होंगी, हाँ तब थी सिस्टर. फादर थे. फादर जनरली यूज टू ट्रैवल, ही वाज विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ही वाज, ज़्यादातर वो बाहर ही होते थे. मेरी बुआ थी. तो इट वाज मोर लाइक अ जॉइंट फैमिली. और शिवरात्रि वाज द बिगेस्ट फेस्टिवल. शिवरात्रि के दिन पूजा होती थी. शिवरात्रि के दिन ऐसा होता था जैसे आप होली पे घर जाते हो, शिवरात्रि के दिन जैसे आप कहीं बाहर भी रह रहे हो, शिवरात्रि की छुट्टी पे वो घर आते थे. अगर आप कोई बेंगलोर में है तो वो आते थे, जो भी है. तो खेलते थे हम लोग शिवरात्रि के दिन. शिवरात्रि के अगले दिन होती है एक फेस्टिवल होता है, सलाम बोलते हैं, उस बच्चों को पैसे देते हैं. उस शिवरात्रि के दिन पंडित जी आते थे, अब पूजा करते थे. So it was like a good life at It that was a time. cool life. It was a cool life. So, like, when was the first time when you realized you had this sense of fear? See, there was always this sense of insecurity there. Let's be very honest. वो अंदर से था. लेकिन वन ऑन वन जहाँ फैमिलीज के साथ आप करेंगे, इट्स अमेजिंग रिलेशनशिप. वो तब भी थे और आज भी है. How did things start changing? ये तो एलिमेंट घुसा ये 86-87 में. वहाँ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना एक, मैंने आपको बताया था शायद, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना. उन्होंने इलेक्शन लड़ा. उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा, उसमें यंगस्टर्स भी थे, इंजीनियर्स थे वो, ये उनको रिगिंग हुई ज़बरदस्त, लार्ज स्केल. उनको वो हार गए. तो उसके बाद दे थॉट कि यार हमने तो वोट इसको डाला, जीता, कोई और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीता. तो दे टुक टू गन्स. दैट इज़ हाउ मिलिटेंसी स्टार्टेड. इनिशियली ब्लास्ट होने लगे, दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेटर. फिर किलिंग्स होने लगे. फॉर इंस्टेंस मेरे कज़न ब्रदर है, मामा का लड़का, उसका जो मामा है, ही वॉज अ टेलीकॉम इंजीनियर. ही वॉज किल्ड इन ब्रॉड डे लाइट, हमारे घर से हार्डली 300 मीटर दूर सड़क पे. और सप्रू उनका नाम है. उस पर उन्होंने नोट लगाया कि अगर इसको किसी ने उठाया तो वील किल दैट पर्सन. वन डे आई हैड गॉन टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइंड, उसका नाम था इम्तियाज़, वेरी नियर बाय टू माई हाउस. तो बाहर पता लगा कि बाहर जो मेन रोड है वहाँ पे वो पथराव हो रहा था. तो आफ्टर सम टाइम मैंने कहा घर में परेशान हो गए होंगे, तो मैं फ़ेरन पहन के था.
मेरे को अंदर से फेरन पहन के गर्मी हो रही थी, जो स्वेटर है मैंने निकाल के अंदर फेरन के ऐसे बांधा और फेरन पहन लिया। अब जब निकल रहे थे तो वहाँ पे सीआरपीएफ और लोकल पुलिस वहाँ पे उस पिकेट पे खड़ी हुई थी, तो दे सेड कि फेरन उठाओ। उनको लगा कि कोई बॉम्ब बॉम्ब लेके तो नहीं आ रहा है। दूसरी वहाँ से दूर उधर की वो जो एरिया वहाँ से पत्थर आ रहे थे, खट खट करके पत्थर। मेरी हालत खराब। तो मैंने फेरन जैसे, वो किसी ने बोला अरे पेट्रोल बम है, उसको लगा कि इसने बांध के रखा है कुछ। जो स्वेटर मैंने ऐसे बांधा था अंदर से, तो वो मेरी पिटाई कर दी। अब वहाँ सडनली जो एसएचओ या कोई एरिया था वो मेरे दोस्त का फादर था। उसने मुझसे पूछा नाम क्या है, मैंने कहा संजय कहो। अच्छा छोड़ो 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 छोड़ो, मैं चला गया। अब मैं रोते रोते बिलखते घर पहुँचा। अभी मुझे पता नहीं मुझे हुआ क्या है, और मैं रो रहा था। मेरी ग्रैंड मदर ने कहा थोड़ा सा सो जाओ ऐसे, मतलब। तो वो जो पिल्लो रखा, जब मैंने पिल्लो पे सर रखा, मैं जब पिल्लो को देखा, मैं तब तक ठीक हूँ, पेन हो रहा है मुझे, इधर उधर हाथ वाथ तोड़ दिया उन्होंने एक साथ जब डंडे बरसाए। तो मैं देखा पिल्लो पूरा ब्लड से भरा हुआ, मेरे सर टूट गया था। तो पूरा मोहल्ला जमा हो गया वहाँ, एंटायर मुस्लिम फैमिलीज वर देयर एंड दे टुक मी टू हॉस्पिटल। आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर सम डेज। सो वो मेरी एक जो एक्सपीरियंस है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। There were n number of things which जिस दिन my father had been transferred to Delhi. He was with Archaeological Survey of India. तो वो दिल्ली में थे। तो मैं एक दिन डिसाइड किया कि मैं चलता हूँ अपने डैड से मिलने, दिल्ली आ जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे और कपड़े वपड़े जो मेरे अच्छे थे वो मैंने पैक वैक करके, तो जब मैं रास्ते, जो हमारा मेन मार्केट था जहाँ पे सब्जी लेने के लिए सवेरे निकलती थी औरतें, लेती थी, नहीं लगती मार्केट सवेरे, अर्ली मार्केट, उस मार्केट में मैंने देखा सब शांत। वहाँ देखा ब्लड पड़ा हुआ सड़कों पे। तो क्या उस दिन पहला ब्लास्ट उस एरिया में हुआ था जहाँ पे कई लेडीज़ एंड जो सब्जी वब्जी ले रही थी वो इंजर्ड हो गई थी। वो अब मेरे तो हालत ख़राब, मेरे हार्ट बीट। अब इससे पहले कि मैं वापस घर चला जाऊँ, मैंने कहा नहीं मैं भाग ही जाता हूँ। और घर पे मेरी दादी, मेरी सिस्टर और मेरी मदर थी बस। मैं जम्मू पहुंचा शाम को। वहाँ चुपचाप अपने मामा के यहाँ पे, मेरे मामा रहते थे उनके वहाँ। सवेरे जब मैंने मॉर्निंग में अखबार पढ़ा तो वहाँ पे मैंने देखा कि उसी दिन शायद लाल चौक में मेजर फायरिंग हुई थी, 52 पीपल वर किल्ड, विच बिकेम द बेसिक पॉइंट जहाँ से कि माइग्रेशन शुरू हुआ। वो 90 का ही रहा होगा, जनवरी 90 में, क्योंकि फरवरी में, जनवरी का ही होगा, समथिंग लाइक दैट। मैं वहाँ से भाग के, मैंने कहा कि इससे पहले मेरे डैड मुझे डांटे कि तुम वहाँ से क्यों निकला, मैं दिल्ली की ओर आ गया। बाय द टाइम आई रीच दिल्ली, माई फादर मस्ट हैव ऑल्सो रेड द सेम थिंग। ही वेंट बैक टू, ही हैड गॉन टू श्रीनगर, बिकॉज वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो गए उन्हीं दिनों। क्योंकि मुझे मदर वगैरह बताती हैं कि रात को एक दिन क्या हुआ, उन्हीं दिनों में जुलूस निकला बहुत बड़ा, जिसमें 1 लाख 1.5 लाख लोग थे, कहते हैं। मैं नहीं था वहाँ, मेरे घर वालों ने, और गन्स लेके सब लोग थे, फायरिंग कर रहे थे हवा में। दे वर सेइंग कि कश्मीरी पंडितों अपनी, कह रहे हैं, मतलब मैं नहीं था वहाँ पे, अपनी और जो लोकल मॉस्क थी वहाँ से ब्लेयरिंग शुरू हो गई, आने लगे कि आप लोग छोड़ दो, समथिंग लाइक दैट, और अपनी औरतों को यहीं रखो। और उसी दिन से जो है नेक्स्ट मॉर्निंग से लोग वहाँ से भागना शुरू हो गए। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। वेपन्स वर ब्रांडिश्ड ओपनली ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीनगर, विच लेड टू द माइग्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित। My father, they got stuck there, they couldn't move out. और वन डे व्हाट दे डिड, उन्होंने सवेरे सवेरे कोई एम्बुलेंस वगैरह कुछ समथिंग लाइक बुलाई। माय मदर ने अपनी गोल्ड जो है जेब में लेके, एक्सेप्ट फॉर गोल्ड, नथिंग एल्स, दे लेफ्ट द हाउस। दे थॉट कि 15-20 दिन के बाद जब ठीक हो जाएगा वापस, और दे लेफ्ट कश्मीर विदाउट रियलाइजिंग वी विल नेवर गो बैक टू द वैली। दैट वाज द लास्ट डे। माय ग्रैंडमदर, मदर, और उन्होंने जब रास्ते में लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, दे सेड कि हमारा बेटा अस्पताल में है, तो हम उसको देखने जा रहे हैं। तो वैसे करके वो वहाँ से निकल गए। अगर उस समय
कम्युनिटी नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता, अगर वो बोलते लोगों को जो वहाँ पे थे, जैसे वहाँ कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था बिटवीन द टू कम्युनिटीज एल्डर्स, वो मनवाते उनको, कहते कि भाई मत निकलो, तो हो सकता है माइग्रेशन नहीं होती. आई हैव नेवर एवर इमेजिन दैट वी विल नेवर गो बैक टू द वैली. No Kashmiri Pandit had this feeling that he won't be able to return. Had this feeling gone, had they realized the intensity of this जो वहाँ हो रहा था, they would have never left. ये कहाँ के पिक्चर्स हैं? ये मेरे फादर हैं, मेरी मदर है, she died in 2003. ये मेरी सास है, इनकी मदर, ये मेरे 2 बच्चे हैं. हम जब आए थे यहाँ, 2 रूम का फ्लैट पुष्प विहार में हमको मिला था. अब जैसे हमने घर में फैन लाया, पंखा लाया, टेबल फैन, तो मेरी मदर और ग्रैंड मदर फिर रोने लग जाए, हमारे घर में है. प्रेस लाया, वो हमारे घर में है. अब जब भी कोई चीज़ हम लोग लाए दिल्ली में, तो घर में मातम सा होता था, खुशी नहीं होती, बिकॉज दे वुड से हमारे घर पे है. एक अच्छी चीज़ लाने के जब भी कोई परचेज होती थी, वो भी हमारे लिए ट्रॉमा बन जाता था. और देन मदर को, ग्रैंड मदर का जो है फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम. अब वो बाहर जैसे बात करती थी दुकान वाले से, वो कश्मीरी में बात करती थी, वो माता जी करके हिंदी में बोलते. अब यहाँ मंदिर कहाँ जाए, वो खो जाती. तो कल्चरल, अब सब्जियाँ हमारी कश्मीर में जो हम हाक खाते हैं, साग जिसे बोलते हो, हम गांठ गोभी खाते हैं, वो यहाँ लग्जरी है. तो ये बिल्कुल मिसमैच हो गया. एक तो गर्मी, वी आर यूज्ड टू सर्दी. Your grandmother, she wanted to go back. Everyone wanted to go back. Everyone. Did she find a closure? Yeah, she didn't find a closure. That's why it was so unsettling. Closure in the sense. क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि वो शायद वापस चले जाए वहाँ पर, लेकिन वो जा नहीं पाई. They had given क्या up. वो सेटल? वो होप चली गई थी. उनके लिए कैसा था, आपके ग्रैंडमदर और पेरेंट्स के लिए? It was a trauma sort of a thing. They were living, they kept it to themselves so that it should not affect their children. They were in constant denial इसमें मोल्ड में. Kashmir was a very peaceful जगह. It was a very peace-loving place. Suddenly वो peace-loving place एक hell बन गया. मतलब जो पैराडाइज जिसे एक्चुअल में बोलते हैं, वो ब्लड, वहाँ पे ब्लड बात हो गया कि they were never expected कि हम अपने घर से निकल जाएंगे. So how was your, like, how old were you? How was your life there in Kashmir? Yeah. I was 15 when I left Kashmir. During I just remember the date, January 17, 1990. Initially, I thought maybe just 1 or 2 months, then we'll come back. But that day never came. And I've seen many relatives, they lost memories because of extreme shock. Extreme. एक होता ना कोई वो psychological effect होता है कि वो 20 years का भूल जाएंगे वो phase. It happened. I have seen many of relatives. It was extreme. I'll tell you an example कि जैसे आप किसी गांव में जाओगे, कश्मीर का गांव, and they are doing केसर वाली खेती, and you know केसर के करोड़्स में होते हैं, and look at the plight of those people. गांव का घर, केसर के खेत, वो छोड़ के they were living in a migrant camp. टेंट में स्नेक बाइट हुआ, वहाँ पे सनस्ट्रोक से many people died. जम्मू वाले people, they are Dogras, and it was a big protest कि नहीं कश्मीरियों को निकाल दो. See, irony of this, it's a state like common state J&K, इंडिया के लोग हैं, but they saying कि नहीं कश्मीरी को निकाल दो, सबको वापस जाएंगे. कहाँ जाएंगे कश्मीरी? वहाँ मुस्लिम निकालेंगे, यहाँ हिंदू डोगरी निकालेंगे. तो भी एक कश्मीरी ऐसा है, हम लोग की एडजस्ट हो गए कहीं. जो 500-600 के हाउसेस थे ना, उनको 2000-3000 में रेंट आउट होते थे. इतना टोटल मिसयूज कश्मीरी माइग्रेंट्स का तब हुआ, इतना ज़्यादा. एंड आई हैव सीन मैनी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जिनका पूरा हाउस नया कंस्ट्रक्ट था. सीरियसली आई स्वेयर, इट्स अ वेरी हर्टिंग स्टोरी. ये मूवीज़ बनाने वाले तो बोल देते, हमने तो लाइव देखा है. दे वर नॉट एबल टू, वो गृह प्रवेश हो जाता, नहीं देख पाए. सारी लाइफ भर की पूंजी लगा दी, पैसा बनाया, घर बनाया, और नहीं देख पाए.
माइग्रेशन हो गया ना, छोड़ दिया सब। तो इसके अंदर क्या क्या है? रोगन जोश जो आपने कश्मीरी रोगन लाल जोश मिर्ची, बनाया। नमक, वाइट पाउडर जो सौंठ होता है, अदरक का पिसा एंड सौंफ, दैट्स इट। थिक ग्रेवी होगी यूजिंग लॉट ऑफ सौंफ। सौंफ पाउडर मेक्स योर ग्रेवी थिकर, ठीक है। दैट्स द। हाँ, सो मेरे लिए पनीर बना है, सब कुछ है, पनीर है, मिक्स वेजिटेबल्स है, है, राजमा है, दाल। दाल। हमें बाद में पता चला कि टीम इज़ नॉन वेजिटेरियन, सो उनके लिए स्पेशली रोगन जोश बनाया गया है, कश्मीरी रोगन जोश। Like you guys shifted here, दिल्ली में आने के बाद. So, I mean, do you wish to go back? या आपकी फैमिली में कोई जाना चाहता था? और We wish to go back, but what we will do there? बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो करेंगे क्या? First thing is survival. Once you are settled outside, you are disconnected then. But we miss Kashmir. Whenever you see on television, you see a movie, you hear a song, so it brings back those memories जहाँ पे हम लोग रहे हैं. We have a fractured past. Now we are trying to piece together those instances. For instance, any कोई situation जहाँ पे कश्मीर का गाना चल रहा है, तो वो again it takes us back to those memories, those days. So whenever there is a link, even if there is a bomb blast, we recall when we were there कैसे bomb blast हुए थे. When there is a procession, वहाँ पे slogan shouting, हम कहते हैं तब कैसे procession होता था. when was the first time when you made peace with it that you won't be able to go back? I made peace with that thing right from day one. The same was with your family. Did they accept that they won't be able to go back? See, our elders, like our parents, grandparents, उनके लिए सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक हुआ है. बहुत से बूढ़े बुजुर्ग जो है बेचारे ये कहने पे मर गए कि एक बार कश्मीर चले. कश्मीर क्यों जाते? ठंडा पानी, ठंडी बर्फ़, अच्छा कूल, अच्छे अच्छे वो सब्जियां. वहाँ जब मैरिजेस होती थी तो पूरी प्रिपरेशन में पूरा मोहल्ला इन्वॉल्व हो जाता था. या सो वहाँ के मतलब जितने भी लोग हैं सब लोगों के अंदर क्योंकि शिफ्ट हो गए एकदम से आना पड़ा, वापस जाने की लगा जा पाएंगे लेकिन नहीं जा पाए, सो एक अनसेटलिंग फीलिंग है. यू हैव बीन अपरूटेड. आपको उखाड़ फेंक के बाहर कर दिया. आप अपनी मर्जी से नहीं निकले. If you were to describe वो unsettling feeling, what would it be? Like for us, See, there are no words to describe something. So, हम लोग we lose, हम लोग बहुत खो जाते हैं. वो एक स्वीट मेमोरी है, एक जर्नी है, तो हम उसको स्वीटनेस के साथ ही एंड करते हैं. उसको अगर उसमें बिटरनेस ऐड करें तो वो बिटरनेस और बढ़ती जाएगी. सो हम लोग उसको स्वीट एनेक्डोट, जैसे मेरा फ्रेंड आ रहा है उसके साथ बातें की, गप्पे की. इफ़ यू टॉक अबाउट कश्मीर इज़ फुल ऑफ पेन. आपका मन हर समय घर पे, आप भी जब यहाँ काम कर रही हैं आपको कितने भी खुश हो लेकिन आपको घर की याद तो आती होगी, मम्मी के खाने की याद आती होगी. वैसे हमको भी याद आती है. हम लोग वहाँ की सब्जियाँ खाते, ठंडी ठंडी हवा पीते, बर्फ़ देखते. बच्चों को मैं ले जाता निशात गार्डन, शालीमार गार्डन, वहाँ पे चश्मा शाही, इतने मंदिर हैं वहाँ पे. कौन सा हमारा तुलमुल्ला खीर भवानी टेम्पल, जीटियर टेम्पल, हारी पर्वत ले जाता. खीर भवानी जो टेम्पल है उसमें पॉन्ड के बीच में देवी का है. वो पॉन्ड का कहते हैं जैसे जैसे जिस कलर चेंज होता है वैसे वैसे. अगर पॉन्ड का कलर ब्लैक है दैट मीन्स कोई मुसीबत पूरे कश्मीर पे आने वाली. ग्रीन है, ब्लू है, दैट मीन्स समथिंग इज़ हैप्पी इज़ हैपनिंग. सो ये हमारी आस्था. खीर भवानी वी कंसिडर वेरी पायस. और लॉर्ड शिवा को हम सबसे ज़्यादा मानते हैं. अब कश्मीरियों में एक और चीज़ होता था, 80% लोग नॉनवेज बनाते थे शिवरात्रि के दिन. अब जब हम लोग यहाँ आए, यहाँ लोगों ने देखा बगल वाला जो है वेजिटेरियन है, उसने कहा शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को मटन चढ़ा रहे हैं. तो हम लोग कहा यार ये क्या गड़बड़ हो गई. तो फिर हम लोग ने कल्चर ही बदल दिया. नॉनवेज हमको लगाना ही था
शंकर भगवान को, वो हमने रूल आउट ही कर दिया। तो अब लोग फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं हम शिवरात्रि। Who do you blame for Politicians. जो हुआ उससे? Politicians. Because politicians are to be blamed for the plight of what Kashmir is going through. Dirty politics. They are playing politics at the cost of the lives of the people of Kashmir, J&K. Politicians don't belong to anyone. Let's be very honest. They look after their own interests. स्ट्रेंथ क्या है वहाँ के लोगों में जो शायद यहाँ के लोगों ने उतना See, नहीं? वहाँ के लोग by and large they are very humane people. Humility है वहाँ पे, शर्म है। अगर कश्मीरी वहीं रहते हिंदू, तो जिस पोजीशंस पे वो आज है, जितना उसका ग्रो किया है, वो उतना वहाँ नहीं करते। इसमें जो है डिसएडवांटेज में भी जो अपॉर्चुनिटीज मिली उनको, एक सेक्शन को, कुछ लोग तो बहुत सफर किए, नो डाउट, हो अभी तक बेचारे नहीं उठ पा रहे, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हुआ बहुत होगा। We have not gone through that pain. We are a different generation. But our generation has seen the pain of migration of Kashmir. So we are live witnesses to the pain which we have undergone, which we are undergoing, the sufferings जो हमको देख रहे हैं, उसको हम बता सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे को वो सफरिंग नहीं है, बिकॉज जो मैं कमा रहा हूँ वो खा रहे हैं। आप समझे, वो they are not going the pain which we are going. We are not undergoing the pain which our parents have gone. और वो उतनी पेन उनको नहीं हुई जितनी उनकी पेरेंट्स, जितना हमारा दादा दादी को हुई है, नाना नानी को हुई। सो डिग्री ऑफ पेन जो है डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएंगी।